Good afternoon, everyone. I welcome all the participants and our expert speaker at today's Masterclass session on marketing essentials for B2B business. And over the last few years, there has been an exponential shift in terms of the technologies the Indian MSME sector it has been incorporating in their businesses. But especially ever since the COVID has set in from early last year, there have been many disruptions which have impacted every single segment of business, be it manufacturing, be it procurement, operation, sales, marketing, logistics, or even finance. And I personally believe that these disruptions are actually good in a way that they have exposed the Indian MSME sector to the vast potential of technological and digital enablement. And the benefits of this shift can easily be like is evident in terms of better cost projection, better cost analysis, efficiency, better time management, and so on. And I totally agree that every business segment is different and not all technologies apply to everyone. However, still there are certain digital and more innovation driven marketing strategies which every MSME must adopt considering the ever increasing business volumes being conducted online. And to give our audience a detailed version of what essential marketing modules our participants need to consider for more efficient marketing practices, we have with us today Mr. Ambuj Saxena. Ambuj is an experienced marketing professional and an entrepreneur himself, and he has a history of working in marketing and advertising industry. And he has been really strongly focusing on B2B segment in MSME category specifically. He has helped organizations by formulating a holistic approach to organizational communication through various digital channels. He is also a World Bank trainer and a podcaster. He has recently expanded his horizons with recent collaborations for brands based out of USA, Romania, Spain, Italy, and UK. So before I hand over the session to Ambuj to carry on the masterclass forward, let me briefly walk you through the profile of the organizer, which is Power to SME. Power to SME got established in year 2012 by our founder and CEO, Mr. R. Narayan. He came up with a very innovative business module, which eliminated the intermediaries from in the supply chain of raw material from big manufacturers to the MSME manufacturers on a demand aggregation basis. And thus we were able to provide better pricing to the MSME clients. And just a info here, Mr. R. Narayan is also currently the president of the FICCI CMSME, which is a MSME body within FICCI. So we usually work very closely through our CEO office with various government agencies. This is the entire Power to SME ecosystem. As I mentioned, Power to SME, our core business is about raw material procurement and sourcing. Our branch Finance Me, it is connects SMEs to the empaneled financial institution and thus facilitates working capital loan in a very seamless manner. Our brand SME Shops is the India's biggest B2B portal for MRO and industrial goods, and both the MSMEs and the corporate big corporates can buy and sell their industrial goods over SME Shops. And we have our NBFC by the name BizFunds, which is into very innovative and new contemporary credit solutions for raw material purchase financing. These are the key product categories that Power to SME deals in: steel, polymer, paint. There are many others. And the major industrial segments that we cater to includes auto components, electronics, engineering, infrastructure is coming up very fast, plastics, and there are several more. These are some of the core competencies that Power to SME offer. We are the one-stop solution for all your raw material needs, be it raw material, be it financing. We offer you very competitive pricing. Everything is online, transparent. And we are an invested company. Some of the most reputed venture funds of the country have invested in us. Inventors, Kalari, Excel. Nandan Nilekani is one of our strategic investors. We are also funded by World Bank through its financial arm, International Finance Corporation. These are the few awards and accolades that we have won over the period of time.
And this is our social media presence. Any one of you wanted to know more about Power to SME can get in touch with us through any of these mediums. So with these words, I now hand over the session to our expert speaker today, Mr. Ambuj Saxena. So over to you, Ambuj, and hope the session will be more of a knowledge transfer and it gets a bit of interactive towards the end in Q&A. So over to you. Thank you so much for a wonderful introduction. And Power to SME is one of the bigger forces in the market today, and that is also visible by the people who are trusting Power to SME and the team, the vibrant team that we have at Power to SME. So thank you so much for everyone who has made this possible. I think masterclasses in themselves serve as a nice break from the monotony of work that we have and opportunity to learn something new. So thank you so much for the introduction. I'll just like to share my screen. Just a second. I hope my screen is visible to everyone. Yes, it is. Okay, thank you so much. So before we move forward on masterclass on marketing essentials for B2B business, I would just like to know a little bit from all of you कि आप लोग किस background से हैं, what are you here for? So if you could just please type in your name, next whether you are employed or whether you are a business owner. Next, what is your company and what is your sector? I'll just give a couple of minutes for everyone to do that. I think some people have already typed. If somebody else is left, kindly do it so that it gives me a bit of perspective on how to shape the conversation that will follow. Mr. Mistry has said, Mr. Pradeep Kumar, welcome, sir. Miss Nidhi has told about herself. Gaurang, thank you. And Devasmith Mohanty, could you please tell us more about yourself, whether you're employed, which company you're working for, and which sector? This session is actually for businesses, and even though B2C के अंदर तो बहुत सी चीजें होती हैं जो कि करनी होती हैं, B2B की जो strategy होती है marketing की, वो बिल्कुल different होती है. So it is a totally different ball game, and many times we are not able to find out similarities when we see big ticket campaigns happening on televisions or on our mobile phones. So B2B happens a bit more subtle, and it's not on your face, in your face. ऐसा नहीं होता है. So that is why it's good to know which sector you are coming from, and yes, so we have a few entries coming in. Deva Smith is a business owner at Stratlytics Data. Oh, wonderful, Deva Smith. You are into ML and AI. I think, buddy, you will know a bit more than me in this session. Baljinder Singh, Head of Sales and Marketing, Jadson Power Limited, Electrical EPC, Panel Builders. Wonderful, sir. Bhavni Shankar, employed software. Gaurang is in oil and gas sector. I could guess that. Deepak from Jagdamba Cutlery Limited, stainless steel kitchenware. Sir, आप जैसे हमारा खाना अच्छा बनता है. So thank you so much for being a part of this. Shruti Ingle, Interpack Machines. Wonderful, ma'am. Swikriti Pradhan, I hope I'm saying it right. Handloom Textiles. Chaitanya Dev Singh, Export Manager, Scientech Technologies. Mohammad Tausif, Software Engineer. Amarjeet, Employed Manager, Exports Aditya, Auto Engineering, Auto Parts. Okay, thanks Amarjeet. That's great. That's wonderful. So I think we can now start the session, and thank you for a wonderful introduction. I think as the responses keep coming in the comment box, I will keep reading it out for everybody who's part of this conversation whenever I find time. So before we go forward, it's very important for you to know that who you will be spending your next 40-45 minutes with. So let's know a little bit about myself. मैं थोड़ा सा अपने बारे में boast करने वाला हूँ, please don't mind. So I'm Ambuj Saxena. I have almost 10 years of experience in digital marketing. I'm an international speaker, and I'm also a World Bank trainer. Apart from that, I've also authored a book. So that book is in hospitality sector, and that has gained a lot of academic accolades and is being used as a reference book in many tourism hospitality schools and colleges across India.
Next, you might be wondering what is my background. So I'm a BTech in computers from Jamia Millia Islamia. I've done MBA in marketing and communications from Mika or Micah, the way you say it. It's based out of Ahmedabad, close to IIM Ahmedabad. So Mudra Institute of Communications, Ahmedabad. And from this college, typically you would see people going and as a corporate communication head of a company, or PR head of a company, or marketing managers, or PNG के Corpcom head आपको मिलेंगे हमारे colleges के. So it's considered a very good college, one of the best when it comes to communications. And then I co-founded Socialbuzz along with my elder brother in the year 2016, and we've been working on many interesting and many campaigns, requirement-based campaigns on that. All is not well if you're just talking about work. So there are fun facts. There are a few fun things about me. I love to do kickboxing. Recently joined my kickboxing gym once again. I love blogging. I love podcasting, as I was introduced like, and I've done scuba diving many times in Andaman Nicobar. The water over there is pristine green, and doing scuba diving over there is wonderful. Although the environment does get affected by every scuba dive that we do, even though we are not harming the environment directly, but there's indirect harm. But yes, it's something that really intrigues me and really makes me very happy to do. Well, why should you be listening to this session? Why should you be a part of it? And what are my credentials for talking to you or giving you some gyan about digital marketing? So this is my digital currency. I've got almost 10 years of experience in digital marketing. As I said, I have done my MBA from MICA, and that was way back in 2013. And usse pehle bhi, I was giving a marketing consultancy to many brands. Next, there have been, I think 40 plus websites have been designed under my monitoring or designed by me as well. And I think this number is a little bit less. I think it has increased over the last few months. When it comes to B2B blog posts, I think that is one niche that is still not cracked in the Indian market. So you would not find many people with 80 plus B2B centric blog posts. I have handled almost 30 plus company Facebook pages, and which means that on a month-on-month basis, you have to think about a strategy, you have to think about the brand guidelines, you have to think about campaigns, you have to think about how to build up a community of followers, how to engage them on a daily basis. So each and every Facebook page or each and every social media channel that we handle as an agency, it's a new job on its own. Again, when it comes to B2B marketing, nothing is complete without the mention of LinkedIn. And 20 plus LinkedIn pages at least हमने handle किए, probably much more than that. Times are changing, and if you look closely, जो चीज़ 1950s में 60s में या even उससे पहले भी देखी जाती थी, उससे अब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं. पहले क्या था कि we used to find out a company through yellow pages, है ना, येलो पेज में जाके देखते थे और वहां से फिर निकालते थे कि कौन सी कंपनी के साथ बात करनी है. इनफैक्ट अभी हाल ही में बॉलीवुड की मूवी थी हेरा फेरी, जिसके अंदर वो गलत फोन कॉल करता है, फिशरीज में फोन कॉल करता है और वो परेश रावल को फोन कॉल लगता होता है. सो दैट इज ऑल्सो अ रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ येलो पेजेस दैट वी हैव सीन. इसके अलावा क्या होता था 1950 60s में या 1920s में, there used to be टीवी कमर्शियल ब्रेक्स, जहाँ पे कि हम लोग टीवी कमर्शियल्स देखते थे और उसके थ्रू हमारा बाइंग डिसीजन इम्प्रूव होता था. इसके अलावा there used to be print ads, classified ads, matrimonial ads, Times classified and all things like that. वहाँ से भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को एंगेज करते थे, उनके साथ बात करते थे, इंक्वायर करते थे, उनके प्रोडक्ट समझते थे और फिर एक बाइंग डिसीजन की तरफ आते थे. सो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका हुआ करता था, अभी भी है, बस थोड़ा कम होता जा रहा है. रेडियो एड्स, पहले तो आकाशवाणी और रेडियो के नाम पे वही थे. अब तो बहुत सारे रेडियो चैनल्स आ चुके हैं, वहाँ पर भी एड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं. आप लोग बहुत बार देखेंगे रियल एस्टेट के बहुत से एड्स देखेंगे वहाँ पर, महागुन के ऐड देखेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना कैनवसिंग कर रही है, सो यू वुड सी अ लॉट ऑफ आई मीन हेयर अ लॉट ऑफ रेडियो एड्स ऑन रेडियो चैनल्स. सो पॉलिटिकल एड्स बहुत सारे आपको देखने को मिलते होंगे. बट वन मोर एंगल दैट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग प्रमोशन वाज आउटडोर. सो टिपिकली हाईवेज के पास आप देखेंगे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स अभी भी होते हैं, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अब कम है लेकिन अभी भी होते हैं. एंड देयर आर आल्सो वेरी इम्पैक्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग के तरीके होते थे.
लेकिन धीरे धीरे मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन आर शिफ्टिंग। थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है, शायद थोड़ा ज़्यादा फास्ट शिफ्ट कर रहा है, मैं इतना बोल नहीं रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट तेज कर रहा है। एंड वॉट इज कमिंग टू योर फेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड प्रमोशन इज डिजिटल। Now, if we have a look at what is digital and why is it going above traditional marketing, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ मार्केटिंग, चाहे आपका टीवी कमर्शियल हो, चाहे आपके रेडियो एड्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे चाहे आउटडोर एडवर्टीजमेंट हो, एवरीथिंग वाज एनेबलिंग यू टू रीच द मासेस। ठीक है ना? तो टिपिकली B2C ब्रांड्स के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन B2B ब्रांड्स के अंदर व्हेन यू वांट टू हैव अ नीश ऑडियंस, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग ही कुछ हैं, तो मैं सबको दिखा के क्या करूंगा? मैं उनको दिखाऊंगा जिनसे मेरे को मतलब है, जिनसे मुझे लगता है कि हाँ यार यहाँ से मुझे काम मिल सकता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है अभी भी वैलिड है और कारगर है, चल रही है, लेकिन इट टेक्स यू टू द मासेस। और आपकी जो जरूरत होती है एज बिजनेस ओनर्स और इन द B2B सेगमेंट मार्केटिंग में, तो यू वांट टू रीच आउट टू द नीश ऑडियंस। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है वो टिपिकली, आप अगर कभी भी अगर रेडियो के 10 सेकंड का स्पॉट देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप पैसा पूछेंगे उनसे कितना लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। आपका प्रिंट एड में बहुत पैसा लगता है, न्यूज़पेपर एड्स के अंदर पैसा लगता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड इज मच मोर इकोनॉमिकल। ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा पैसा लगता है। यू जस्ट हैव टू सेट अप योर फेसबुक पेज, यू जस्ट हैव टू सेट अप योर लिंक्डइन पेज एंड यूर अप। वेबसाइट को बनाने के भी तरीके, वर्डप्रेस के अंदर जाके आप वेबसाइट बना सकते हैं, आपकी विक्स पे वेबसाइट बनती है, बहुत तरह से वेबसाइट बनती है। यू डोंट ऑलवेज हैव टू स्पेंड मनी टू डू डिजिटल मार्केटिंग, सो इट्स मोर इकोनॉमिकल इन दैट सेंस। ऑल्दो यस, बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका बहुत इकोनॉमिकल रहता है, उसके बाद आपके खर्चे होते हैं, बट वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक क्वार्टर का बजट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट आपका 6 महीने के बजट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बराबर बन जाता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना? एंड यू वुड नॉट सी एनीबडी टॉकिंग टू द टेलीविजन व्हेन देयर इज एन एड दैट प्रोवोक्स दैट पर्सन इन एन एडवर्स मैनर, है ना? आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा अगर कोई बंदा टीवी से बात कर रहा हो, ऑब्वियसली बिकॉज टीवी विल नॉट टॉक बैक टू यू। बट इफ यू बुक एन ओला और एन ऊबर, और वो ओला एंड ऊबर वाले ने आपसे मिसबिहेव किया, या आपकी इंडिगो की फ्लाइट आपकी मिस हो गई विदाउट योर बीइंग इन्फॉर्म्ड, तो यू कैन गिव अ फीडबैक ऑन देयर फेसबुक पेज, आप ट्विटर पे डाल सकते हैं, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो पता चला फीडबैक के तौर पे आपने शेयर कर दिया, पता चला आपको कॉल्स आई ओला ऊबर से कि भाई वी आर सॉरी फॉर दिस सर्विस, एंड इंडिगो वालों को कॉल आ रही है कि भाई वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस व्हाट दिस हैपनिंग। सो इट्स अ फीडबैक बेस्ड टू वे कम्युनिकेशन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो आपकी जब ब्रांड कहीं पर जा रही है बात करने के लिए, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी है और एक एंजॉयमेंट की बात भी है कि आप अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो बंदा आपके लिए अच्छा बोलेगा, अगर आप खराब सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको उसके लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग अंदर ये थोड़ा सा है। नेक्स्ट, इफ यू डू, मैं एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग के एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि इफ यू प्लान टू डू आउटडोर कैंपेन बाय टेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्यू बस शेल्टर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड इफ यू से कि भाई ठीक है मेरे को DND पर जो है अपने बैनर्स लगाने हैं, you know that internally you know that there's a lot of traffic that will go from D&D। ये बस शेल्टर्स के सामने बहुत से लोग बैठे होते हैं, उनको भी दिखेगा, गाड़ियां निकल रही हैं उनको दिखेगा, सबको दिखेगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि आप कितनी जनता तक पहुंचे उस आउटडोर एड के थ्रू, आई थिंक यू विल नॉट हैव अ क्लियर आंसर फॉर दैट। ये जो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो एक फिगर है, इसको मेजर कर पाना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ है। और इसकी ही वजह से ज़रूरत पड़ी कि लोग अपना जो है पर्सपेक्टिव जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटाकर, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, जिसके अंदर रिटर्न भी समझ में नहीं आ रहा है कितना आ रहा है, वहाँ से हटा के हम कोई इकोनॉमिकल जगह पे लाएं जहाँ पे कि हम ROI भी मेजर कर पाए। सो व्हेन आई से ROI, so how am I supporting my argument that ROI is measurable in digital marketing? So when you do digital marketing on, for example, a website, तो वेबसाइट के अंदर आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि भाई इस क्वार्टर के अंदर मेरे पास कितना ट्रैफिक आया वेबसाइट के अंदर, तो आपके पास प्रॉपर नंबर के साथ व्हेन यू अटैच योर गूगल एनालिटिक्स टू इट, यू कैन फाइंड आउट द वेबसाइट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक पेज अगर आप सेटअप करते हैं एंड इफ यू वांट टू नो कि यार मेरे फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तो रीच का नंबर, उसके थ्रू आप लोग को पता चल सकता है कि मेरी पोस्ट को कितना रीच कर रहे हैं, कितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। वो तो चलिए एक छोटा सा नंबर होता है, बट एंगेज कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं मेरी पोस्टों को, ये पता चलता है।
जब हम लिंक्डइन की बात करें, अब लिंक्डइन का भी एल्गोरिथम बिल्कुल डिफरेंट है, और लिंक्डइन का एल्गोरिथम फेसबुक से बिल्कुल डिफरेंट है, और लिंक्डइन एल्गोरिथम जो है वो कमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो देता है बिकॉज ऑफ स्लो डीके एल्गोरिथम दैट इट यूजेस. सो इट इज गिविंग यू दैट लेवरेज कि जितने लोग आपके लिंक्डइन की पोस्ट पे कमेंट करेंगे उतनी आपकी पोस्ट ज़्यादा दिखाई देगी, ज़्यादा देर तक दिखती रहेगी लोगों को. तो इट इज़ ईजी टू मेजर ROI. प्लस एनालिटिक्स का सबका डैशबोर्ड है, फेसबुक का खुद का अपना डैशबोर्ड है, लिंक्डइन का आपका खुद का डैशबोर्ड है जहाँ पे कि आप अपनी डेट को सेट कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं भाई मुझे ये पैरामीटर आप दिखाइए, कितने कमेंट आए मुझे एक महीने के अंदर, कितने रीच हुई मेरी पिछले एक क्वार्टर के अंदर. आपको सब कुछ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन आपको आपके डिजिटल मार्केटिंग चैनल से पता चलता है. सो the way of measuring ROI is much easier and it's much more convenient than if you do an outdoor advertising ad or something like that. नेक्स्ट जो है, अगेन एज आई सेड अर्लियर कि अगर बिजनेस ऐसा है जहाँ पे कि आपको पता है कि भाई मेरे को मास मार्केटिंग नहीं करनी है, सो यू वुड हैव टू फाइंड अ नीश ऑडियंस. नीश ऑडियंस मतलब एक टारगेटेड, एक फोकस, एक छोटा सा सेगमेंट ऑडियंस का आपको चाहिए होगा, जो कि अगेन ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा निकालना मुश्किल है. मतलब आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी तब जाके वो मिलेगा, और तब उसके बाद आप बात करोगे पैसे की, कितने पैसे में क्या क्या मेरे को डिलीवर हो सकता है. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अगर आप बात करें, तो अगर अपनी सही टारगेटिंग सेट करें, टारगेटिंग से मतलब मेरा है कि डेमोग्राफी, बंदे की किस बंदे को दिखना चाहिए, ये सेट करने के लिए आप बताएं कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उस बंदे का. भाई वो बंदा होना चाहिए 18 से 25 साल की उम्र में, ठीक है, स्कूल ज़्यादा बच्चा होना चाहिए, या फिर आपका कॉलेज में एक्सपायर कर रहा हो किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है. उसके बाद आप कहें कि भाई उसका जो इंटरेस्ट है वो नीरज चोपड़ा उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ओलंपिक से गेम भी वो फॉलो करता हो. तो उसके बाद उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए, फिटनेस सेंट्रिक होना चाहिए, वो जिम भी जाता हो. तो ये सब चीज़ों को, जो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट लेवल की टारगेटिंग है, इन सबको यूज करके जो है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, दे कैन शो योर एड्स टू पीपल इन दैट नीश ऑडियंस. तो जिससे मतलब है उस तक आपका ऐड पहुंचेगा, उस तक आपका कंटेंट पहुंचेगा. प्लस अगर एनीवेज आपके लिंक्डइन पेज को फॉलो कर रहा है तो उसको भी आपकी पोस्ट दिखाई देंगी. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे वो कितने बजे देख रहे हैं आकर, और आपकी पोस्ट पे कितने कमेंट आए, जितना वो हैंग कर पा रही है पोस्ट, तो उस पर बहुत मैटर करता है. बट द पॉइंट इज दैट यू कैन रीच अ नीश ऑडियंस एंड यू कैन एक्चुअली इकोनॉमिकली सेव योर मार्केटिंग बजट बाय डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग दैट, जो कि सिर्फ मासेस में आपके ऐड को पूरा पहुंचा देता है. अब हुआ क्या है कि 2019 के पहले और 2019 के बाद से हमारा जो कोविड का जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ है, टिपिकली दिसंबर के आसपास जो है, दिसंबर 2019 के आसपास, नवंबर 2019 के आसपास, तो वी हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वुहान ओनली गेटिंग अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस. और फरवरी 2020 तक आते आते एंड मार्च 2020 तक आते आते इंडिया के अंदर भी काफ़ी प्रेवलेंट हो गया था, एंड लॉकडाउन होने लग गए एंड थिंग्स लाइक दैट. सो पीपल यूज्ड टू स्टे एट होम, inside their homes, locked up inside their homes, and they would do something. जिनको आदत है हर दिन जाके बाहर फ्रेंड साथ बात करने की, अब वो घर पे बैठे हुए. जिनको आदत है हर वीकेंड पे जाके एक मूवी देखने की, वो घर पे बैठे हुए. तो क्या करेगा बंदा, आपका जो सेलफोन है वही काम आएगा. तो सेलफोन है, स्मार्ट टीवीज हैं, इन सब के थ्रू जो है ना मोबाइल स्क्रीन का टाइम हमारा बहुत बढ़ गया. इसका क्या हुआ, कोविड का इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोग ना ज़्यादा बैठने लग गए टीवी पर, ज़्यादा बैठने लग गए अपने लैपटॉप पर, ज़्यादा बैठने लग गए अपने कंप्यूटर पे. उनके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ गया बिकॉज देयर वाज नॉट टू मच ऑफ एक्टिविटी टू बी डन आउटसाइड. घर बैठे बैठे हम लोग ये करने लग गए. सो हुआ क्या है, बट इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, जैसे 76% ऑफ इंटरनेट यूजर्स एजेड बिटवीन 16 to 64, माइंड यू 16 to 64 जो एज ग्रुप है वो हमारा वर्किंग एज ग्रुप कहलाता है. टिपिकली होता है 18 to 60 होता है, बट 16 to 64 एक हमारा वर्किंग एज ग्रुप है. 76% of that age group is spending more time using their cell phones as compared to pre-lockdown period. तो मतलब आपका ऑलमोस्ट 3/4 पीपल जो आपके आसपास जितने भी आपको दिखेंगे वर्किंग एज में, वो ज़्यादा टाइम है सेल फोन पर. तो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आपकी ब्रांड के लिए क्या मतलब है कि आपकी ब्रांड की अगर डिजिटल प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, लिंक्डइन पेज, फेसबुक पेज, व्हाटएवर इट इज, तो आपके पास ज़्यादा चांस है उनकी आंखों के सामने आने का, ब्रांड अवेयरनेस का. नेक्स्ट, 80% of women are using mobile phone for shopping during lockdown. I think that is a very, very important stat because women not only influence the behavior and influence the dynamics of
फैशन ब्रांड्स, बट ऑल्सो जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, जो कंज्यूमेबल्स जिसको कहेंगे, उसका भी बिहेवियर बहुत बड़ा विमेन के ही बिहेवियर से इफेक्ट होता है. सो इंक्रीज ऑफ विमेन using mobile phone during the lockdown is very very positive for many sectors of brands. नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे इंडिया के अंदर मोबाइल फोन पेनिट्रेशन, मोबाइल फोन पे इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है. 2019 के अंदर 420 मिलियन थे. नाउ 420 साउंड्स अ बिट शेकी नंबर, बट अब वो बढ़ के 450 के आसपास पहुंच रहा है मिलियन इन 2020. दिस इज अ वेरी बिग इंक्रीज, ऑल्दो सीम्स लाइक जस्ट 28 मिलियन ही तो बढ़े, लेकिन आप अगर देखें तो 28 मिलियन जो बढ़े हैं ये बहुत सारी कंट्रीज को मिलाने के बराबर का ही है. इंडिया के अंदर कोई भी परसेंटेज चेंज जो होता है वो एक बड़े नंबर के अंदर, बड़े वॉल्यूम के अंदर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन. सो दिस इंक्रीज ऑफ 28 मिलियन mobile phone internet users is actually a very big opportunity for any brand like ours. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अभी जो हम सब कुछ 3 फैक्ट्स पे हम जो बात कर रहे थे, उसका एक और वैलिडेशन यहाँ पर हुआ है कोविड के चक्कर में, कि पहले जो एवरेज यूजेज था मंथली 4G डेटा का, आप सबके पास शायद अब तो 5G भी कुछ कुछ के पास होगा, 4G डेटा का जो एवरेज मंथली यूजेज था वो पहले 500 MB से लेके 1 GB के बीच में था. बट नाउ, ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, 500 MB से लेके 1 GB, इवन दैट यूज्ड टू बी इनफ फॉर मेनी पीपल. बट अब 2020 के अंदर दिसंबर के अंदर देखा गया कि ये जो 1 GB तक की मैक्सिमम थी अभी बढ़ के 13.5 GB हो गया. जस्ट इमेजिन कि एक ही बंदा जो अभी तक शायद 1 घंटा स्पेंड करता होगा सेलफोन के अंदर, अब वो बंदा हो सकता है कि 12 घंटे स्पेंड कर रहा हो, बिकॉज दैट इज वॉट द फिगर शोज अस. ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू, जरूरी नहीं कि हर बंदा 12 घंटे स्पेंड कर रहा हो, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर इंक्रीज, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं पे मोबाइल ऐप्स ऐसी यूज की जा रही है जहाँ पे कि या तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया जा रहा है, या जो मोबाइल ऐप पड़ी हुई है फोन के अंदर उनको ज्यादा यूज किया जा रहा है. इसके वजह से ये एवरेज यूजेज ऑफ मंथली 4G डेटा बढ़ता जा रहा है. सो टिपिकली आई थिंक मोबाइल ऐप्स का बनाना ये भी बढ़ा है बहुत ज्यादा इस दौरान, और जो आपकी नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, और जैसी OTT ऐप्स हैं, ओवर द टॉप जो एडवर्टीजमेंट वाली ऐप्स होती हैं वो बड़ी हैं. प्लस फेसबुक के अंदर बंदा ज्यादा देखता है. टिकटॉक हैज बीन बैंड, लेकिन पहले टिकटॉक भी बहुत ज्यादा हमारे मेजर था. इंस्टाग्राम के अंदर लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंडल्ज करना शुरू किया. ट्विटर, थैंक्स टू दी कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट एंड ट्विटर को भी बहुत अभी आजकल हाइप मिली हुई है. प्लस लिंक्डइन के अंदर तो आई थिंक इट हैज बीन अ ब्लास्ट. You can see anybody and everybody talking to about their brands on LinkedIn. LinkedIn एक ऐसा मार्केट प्लेस बनता जा रहा है जहाँ पे कि पहले तो सिर्फ हायरिंग के लिए लोग जाते थे, अब तो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करने के लिए जाते हैं, एम्प्लॉयज के बारे में बात करने जाते हैं. तो LinkedIn जिस तरह से बदल रहा है इस सब पूरे में, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है. और क्योंकि LinkedIn बदल रहा है एंड LinkedIn इज मोस्ट रेलिवेंट टू अ B2B ब्रांड लाइक योर्स, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली इस टाइम पर जब कोविड के बाद से हम लोग स्टार्ट्स को देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Well, as we can see, change is the only constant. Earlier, the offline channels of communication used to be group discussions, communication through direct marketing, pamphlet देना, और radio, TV, television, ये सब कुछ communication करना. But slowly that is changing into online advertisements, internet ads, chat, blog posts, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. हम लोग अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, सो दैट इज आल्सो बूम लाइक एनीथिंग. देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चाहे जूम से कर लें आप, चाहे आप गूगल मीट से कर लें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम से कर लें. अब तो बल्कि हम लोगों ने तो एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जहाँ पे कि यू कैन डू अ वर्चुअल इवेंट ऑल बाय योरसेल्फ. एक पता चला डीलर मीट करानी है आपको, एंड यू वांट एवरीबॉडी फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया टू जॉइन दैट डीलर मीट, तो वो सबके अलग अलग ब्रेकआउट रूम बन जाएंगे, स्पॉन्सर्स का अलग से जगह बन जाएगी, and you can have a virtual event being hosted out there. So technology is moving very fast. The change is the only constant. Next, so when we talk about digital marketing as such, digital marketing के अंदर हमारे interesting stats क्या हैं जिसकी वजह से B2B के business owners को फर्क पड़ना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए. First of all, 94% of B2B buyers research online before they buy a new product for business. सो टिपिकली इसका मतलब क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है ना, कि रिसर्च के 2 पार्ट्स हैं.
रिसर्च का एक पार्ट तो ये कि जहां से वो प्रोडक्ट लेने वाला है उसने अपने प्रोडक्ट को किस तरह डिस्क्राइब किया है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे अपने अपने ऑफिस के लिए एक एक माइक चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब माओनो का भी माइक है और आपका सोनी का भी माइक है और आपका ये लोकल ब्रांड्स का भी माइक है, सो यू विल रीड ऑल द ब्लॉग्स। दूसरा एंगल खुद का लिखा हुआ कंटेंट, दूसरा एंगल लोगों ने उनके उस ब्रांड के बारे में क्या बोला है, रिव्यूज। सो बंदा ये पढ़ता है कि अमेजोन पे जाता है बंदा, तो बंदा पढ़ता है कि स्मार्ट एलईडी लाइट खरीदनी है, ठीक है यार, इसकी लाइट के लिए क्या रिव्यू दिया गया है, मैं वो पढ़ूंगा। इसके में क्या पैकेजिंग खराब है, या फिर इसका फ्यूज खराब हो जाता है, या क्या होता है, वट एवर थिंग्स आर। सो B2B buyer, 94% of B2B buyers research online before they buy a new business product. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इफ यू आर लुकिंग अप टू upgrade your digital marketing for your B2B brand, you have to have a very, very dynamic component in the form of content, blog, video, podcast, इन सबको आपको डायनामिकली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि बंदा आपके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आ रहा है। आपके रिव्यूज का पोर्शन होना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके फेसबुक पे रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, लिंक्डइन के ऊपर आपकी कंपनी के बारे में अच्छी बातें होनी चाहिए, आपको भी करनी पड़ेंगी, आपको एम्प्लॉयज की बात भी करनी पड़ेगी। सो B2B बायर बहुत स्मार्ट है, he will look at everything before he makes a decision, and 94% people are like that. 77% marketers have noticed a significant increase in conversion rate due to successful digital marketing campaigns. इस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स जो होती हैं वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक होती हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उस प्लेटफॉर्म से उस मार्केटिंग कैंपेन का फायदा क्या हुआ ये समझ नहीं आता। लेकिन कन्वर्जन रेट जब होता है उसका ये मतलब कहा जाता है कि अगर आपने अगर कोई कैंपेन किया और आपकी कैंपेन की वजह से क्वेरीज आनी शुरू हुई, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरने शुरू हुए, या फिर आपके कोई ब्रोशर डाल रखा था वो डाउनलोड ज्यादा होने शुरू हुए, तो ये सबको ट्रैक कर पाना, दिस मीन्स देयर वाज अ कन्वर्जन। सो मार्केटिंग कैंपेन जो होती हैं दे 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 प्ले ऑन द साइकी ऑफ द कंज्यूमर, they make that brand stick inside your mind and make that person do something for your brand. Either he will send a query, contact form भरेगा, या फिर कोई ब्रोशर डाउनलोड करेगा, या फिर कोई और भी कोई चीज हो सकती है, जैसे आप लोगों ने अगर वीडियो बना रखा तो वीडियो प्ले। तो ये सबका ट्रैकिंग भी करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। सो ये ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि लीड का कहीं लीकेज ना हो जाए, तो इसकी ट्रैकिंग का भी बहुत अलग प्रोसेस होता है। बट उसके लिए उन सब चीज़ों के लिए जो सेकंड थर्ड और फोर्थ लेवल की चीज़ें, उससे पहले ये होता है कि आपकी वेबसाइट डायनामिक होनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स का थॉट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड राइट पीपल टू एग्जीक्यूट इट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट इंटरेस्टिंग ये है, 15% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प generate 15% more business from existing customers. As a B2B brand, हम लोग we tend to have more business from word of mouth, more business from sustaining customers. So digital marketing से आपने अगर ईमेल कैंपेन की अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के ऊपर, ईमेल डेटाबेस के ऊपर, 15% मोर बिजनेस यू विल बी एबल टू जनरेट इफ यू डू गुड अमाउंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद देम। वो हम सारे तरीके भी बताएंगे आपको कि कैसे कैसे होता है। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज इन मेनी वेज। कस्टमर एक्विजिशन, कोई ये फ्रेश कस्टमर आप पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केटिंग योर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एंड जनरेटिंग ट्रैफिक योर वेबसाइट। आपने कोई नया सेगमेंट अपना खोला है, जैसे हम लोग अभी एक एलईडी लाइट की अगर एग्जांपल लें कि एलईडी लाइट तो एक स्मार्ट एलईडी भी होता है और एक नॉर्मल एलईडी भी होता है। स्मार्ट एलईडी वो जो कि मोबाइल ऐप से आप करो, दोपहर में कम ब्राइट हो, शाम तक आते थे वो खुद से उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए, स्मार्ट एलईडी लाइट्स। So if you are a company that has been doing LED lights for the last 20 years and now you've started a new segment which is smart LED, so you want people to see that part of your company. So डिजिटल मार्केटिंग थ्रू वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक आएगा, उस सेक्शन को बंदा चेकआउट करेगा, आपकी फीचर्स चेक करेगा, कितनी वोल्टेज पर है, कितना ब्राइटनेस है, कौन सा कलर ऑफ लाइट देगा, ये सब कुछ बंदा चेकआउट करेगा ऑन योर वेबसाइट और ऑन योर लिंक्डइन पेज। सो आपकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बंदा सब कुछ चेकआउट कर पाएगा। You can promote your brands, you can connect to current users, you can have more business opportunities, you can crowdsource innovative ideas for better existing services, and obviously अगर किसी का अगर आपके लिए feedback है तो as I said before, feedback but and two-way communication are possible in digital marketing, so you can also manage your reputation online. So ये सब चीजें हैं जिसके वजह से डिजिटल मार्केटिंग बहुत प्रोमिनेंस में है एंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए। How can we digitally enable your organization? Corporate website. I think
you can find a parallel between a website and a business card that you share with people. बिजनेस कार्ड्स भी आजकल हम लोग थोड़ा कम शेयर करते हैं, बट स्टिल बिजनेस कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस कार्ड्स बहुत सी सोसाइटीज के अंदर दे आर कंसिडर्ड टू बी द शैडो ऑफ दैट पर्सन. जापान के अंदर आप अगर जाएंगे तो बिजनेस कार्ड इज ऑलमोस्ट लाइक अंबुज सक्सेना का बिजनेस कार्ड आपको दिया है तो मतलब इट इज लाइक द शैडो ऑफ अंबुज सक्सेना विद यू, सो यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट. सो बिजनेस कार्ड हम लोग थोड़ा कम यूज करते हैं, लेकिन अभी भी उसकी सिग्निफिकेंस कोई कम नहीं हुई. बट यू कैन फाइंड अ पैरेलल ऑफ business card with a website. Website is just like your business card. It has everything that you have to say in the least number of words, or probably in more number of words. For example, this is my business card. इसके अंदर मेरा लोगो है, मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का नाम, ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ है इसके अंदर. एंड दिस इज माई वेबसाइट. वेबसाइट के अंदर मेरा ये है मेरा बिजनेस कार्ड, इफ यू कैन से. सो वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे मेरा लोगो टॉप पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे. वहाँ से फिर होम, अबाउट अस, सर्विसेज, वीडियो, पॉडकास्ट हम लोग करते हैं, ब्लॉग्स हम लोग करते हैं, वी हैव केस स्टडीज, वी हैव क्लाइंट्स का लिस्ट एंड वी हैव कॉन्टैक्ट अस. एंड उसके बाद फिर मेरी प्रोफाइल है वहाँ पर. सो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ ऑनलाइन बिजनेस कार्ड which has other information as well. So वेबसाइट को बनाने के लिए अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप क्या क्या चीज़ सोचोगे. सो वो एक छोटी सी चेकलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है. दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस, बट फॉर स्टार्टिंग ऑफ टू मेक अ वेबसाइट ये चेकलिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. आई जस्ट रीड आउट दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स अमंग्स दीज चेक पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ वेरी सिंपल डोमेन नेम. बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बहुत डोमेन नेम बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, खुद को याद नहीं रहता. तो डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए एकदम सुन के याद रहे उसको. नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब भी आप जाएं और वेबसाइट बनाने की बात करें, सो यू शुड ओन योर डोमेन नेम, यू मस्ट ओन योर होस्टिंग स्पेस. डोमेन मतलब वेबसाइट बनाने के लिए भी दो चीज़ आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए होती है. एक तो डोमेन नेम चाहिए होता है, घर का नाम, और एक घर कहाँ बनेगा ये तो देखना पड़ेगा ना, तो दैट इज होस्टिंग स्पेस. सो बोथ ऑफ देम शुड बी ओन्ड बाय यू. प्लस SSL सर्टिफिकेट, जो आप देखते होंगे HTTP और HTTPS, तो जो S है ना वो दैट इज फॉर कंपनीज दैट हैव बॉट SSL सर्टिफिकेट. सो यू शुड बाय SSL सर्टिफिकेट. ये तीन चीजें आपकी अपनी होनी चाहिए, डोमेन नेम, होस्टिंग स्पेस एंड SSL सर्टिफिकेट. इसके अलावा जिनसे भी आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, यू मस्ट इंश्योर दैट इट्स अ मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट. बिकॉज आजकल जो है ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप को खोल के नहीं बात करते, वेबसाइट को या कहीं पर भी मोबाइल फोन के थ्रू बात करते हैं. सो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए आपकी. नेक्स्ट, SEO फ्रेंडली होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली देर आर ऑलमोस्ट 2 मिलियन वेबसाइट्स ऑल ओवर द वेब. सो आपने एक वेबसाइट बना दी थी तो भी क्या बड़ी बात होगी. सो कल को आपको ये वेबसाइट को अगर दिखवाना है लोगों को, आप चाहते हैं कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए, तो आपको SEO कराना पड़ेगा. आपको एक मैच्योर स्टेज ऑफ मार्केटिंग होती है वो. तो SEO का मतलब ये होता है कि हम कीवर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, कीवर्ड ढूंढते हैं आपके इस सेगमेंट के लिए, और फिर उन कीवर्ड्स को आपके ब्लॉग के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू उसको एम्बेड करते हैं वेबसाइट के अंदर, जिसके थ्रू गूगल को पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इस कीवर्ड पे अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो मैंने इसको इस वेबसाइट पे लेके आया. सो इट इज फॉर गूगल टू अंडरस्टैंड और याहू टू अंडरस्टैंड कि आपकी वेबसाइट किस बारे में. देन योर होम पेज बैनर शुड बी अट्रैक्टिव. You should have clearly visible contact details. For example, phone number, एक अलग से आप phone number रखें, एक अलग से आप email ID रखें. Attractive, you should have display pages. Product display pages should be very attractive. Category pages should be attractive. If you have a corporate brochure, or in case of a restaurant, if you have a menu, so that should have a download button. सिर्फ देखने के लिए ना हो, download करने लायक भी हो. अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, so you should have an order online का बटन. So call to action कहते हैं इसको. Call to action could be order online, it could be download, it could be contact us. तो आपके call to actions should be specifically out there. Blog section आपका होना चाहिए. This will help you in SEO and making a website visible. बहुत सी real estate companies होती हैं, they like to have a savings calculator. They want to show that if you buy this property, you will be saving this amount of money in the long term. तो saving calculator जैसा एक functionality भी होता है, वो भी यूज करते हैं लोग. फाइनेंशियल वेबसाइट्स बहुत बार क्या करती हैं कि आपने अगर कोई कार लोन लेने का प्लान किया हुआ है एंड यू आर एन NBFC, तो NBFC ऑल्सो हैज अ कैलकुलेटर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं इतना लोन इतने साल के लिए इतने महीने इतने इंटरेस्ट रेट पे लूंगा, तो मेरे को इंटरेस्ट रेट क्या पड़ेगा, मतलब वो प्रीमियम में पड़ेगा. प्राइवेसी पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, साइट मैप आपका होना चाहिए. सब ये चेकलिस्ट का पार्ट है. अगेन दिस नॉट एग्जॉस्टिव, देयर शुड बी मेनी मोर थिंग्स, बट टू स्टार्ट ऑफ these should be the things you should consider. आप लोगों को मैं एक आध वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ. प्लीज गिव मी द opportunity to do it.
Just a second. अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है. आर यू एबल टू सी दिस वेबसाइट वेम्बले? Yes, visible. ओके ओके ओके. सो ये हमने वेबसाइट बनाई है. मैं इसके थ्रू बस आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. ये जो 3 चीज़ें आ रही हैं ये सारे इनके प्रोडक्ट्स के होम पेज के बैनर्स हैं that show what the website is all about, what the company is all about. नेक्स्ट आप अगर ऊपर देखें यहाँ पर तो इनका एड्रेस यहाँ पर है, ईमेल एड्रेस, ये इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं जो हम लोगों ने हैंडल किए थे. नाउ दिस इज वन प्लेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. दे वांट टू हैव मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स. So we have integrated this point of having more distributors over there, franchise owners, distributors. ये सब चीजें आप वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं. यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे अबाउट अस है, अबाउट द कंपनी, प्रोडक्ट्स, कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये सब कुछ का यहाँ पे डिस्प्ले है. करियर्स, इफ somebody wants to apply to this company, support, contact us. And if we go further down, so there's a journey of Wembley. Wembley is also in the same adhesive industry as Fevicol. It's older than Fevicol, so they have a legacy attached to them. These are some of the products that they have. अंदर जाके इनके ये आप कह सकते हैं कि होम पेज के अंदर इनके प्रोडक्ट पेजेस हैं और फिर वहाँ से अंदर जाके इनके कैटेगरी पेजेस भी आते हैं और होम पेज भी आते हैं. यहाँ पे आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई. नेक्स्ट आपके ये हाईलाइट्स हैं. These are something for the dealers and for the B2B sellers to understand that they have distributors pan India, they have retail counters, they have production capacity, and what they can do for the dealers. And then this is finally a footer part, and इसके अंदर वो सब चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को डालनी चाहिए. So this is one case study that we have to show you. So ये सब चीज़ आपके लिए पॉसिबल होती है वेबसाइट के अंदर करना. It's like a address that you have. नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा which is a website जो हम लोग अभी बना रहे हैं. इसके अंदर 2-4 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाली. एलईडी की ये वेबसाइट है एंड इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डायनामिकली मूव करती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हैं. एंड ये जो हमारा एक फीचर है दैट इज शोइंग ऑल द प्रोडक्ट्स, और आप इस पर क्लिक करेंगे किसी एक पे तो आप यू कैन गो इनसाइड ऑफ दिस पेज. दिस इज अ वेबसाइट स्टिल इन कंस्ट्रक्शन मोड, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फीचर्स कैसे कैसे ऐड हो सकते हैं, हाउ टू मेक इट इंटरेक्टिव. इसमें आपका जो ब्रोशर होता है दैट इज स्टैटिक, बट व्हेन यू शो दिस फीचर्स लाइक दिस टू योर कंज्यूमर इट लुक्स लाइक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे हमने साइड बार के अंदर ये रखा हुआ है जहाँ पे कॉन्टैक्ट कोई कर सकता है, हमारे को ब्रोशर डाउनलोड कर सकता है, प्रोडक्ट्स देख सकता है. एंड एक जो हमने फीचर उसमें और ऐड किया है दैट इज ब्राइटनेस इंडिकेटर. सो एज सून एज आई लोअर इट ब्राइटनेस कम हो जाती है, एंड व्हेन आई मेक इट टेक इट हायर तो ब्राइटनेस आपकी बढ़ जाती है, which is also indicative of what the company does. They're also into lighting solutions. Plus इनके ई-कॉमर्स सेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है. सो ई-कॉमर्स सेलिंग से मतलब मेरा है कि जस्ट अ सेकेंड, बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर आपका ट्रैफिक जब तक आएगा तब तक आएगा, बट बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक जा रहा है. वन ऑफ देम इज अमेजॉन. सो अमेजॉन के अंदर इनका पेज है हमने जो बनाया है, और उसके अंदर सारी इनकी चीज़ें एम्बेडेड हैं. आपको जैसे चाहिए आप वैसे ऐसे बैनर्स आप ऐड कर सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं. कोई चीज़ आपकी अगर इन्वेंटरी के बाहर हो गई तो आपने उसको हटा दिया, करेंटली अनअवेलेबल बोल दिया, और जितनी भी चीज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं वो आपकी सेलेबल है. सो एक तरह से एक मिनी या माइक्रो वेबसाइट आप बोल सकते हैं कि आपको अमेजॉन भी और ऐसे जो अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो अलाउ करते हैं. एंड दैट इज गुड फॉर you if you are setting up your brand, an e-commerce brand. So these are some of the case studies that I wanted to show you when it comes to website. So website is पे मैं ज़्यादा इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ because website एक must have है. It is not optional. It must be in your company. There must be somebody who should handle your website. There should be somebody who can make changes to your website, make it dynamic, promote it, and make it visible to the outer world. एक इन्फोग्राफिक की जर्नी है. वी हैड मेड एन इन्फोग्राफिक फॉर अ कंपनी दैट वांटेड टू शो इट्स प्रोफेशनल जर्नी. सो दे स्टार्टेड ऑफ इन 1996 एंड टिल 2019
how they worked on the furniture and all. उनका furniture setup करने का काम है wooden furniture का. So that is how we showed their infographic के through उनकी journey दिखाई है. So these are also embedded in the website. So this is what you can do. Plus, when it comes to digital marketing, you can also appeal to your dealers, distributors, franchise जिसको आप देना चाहते हैं. You can also call them on, like we did with this. For Wembley, they wanted to have more distributors, they wanted to have more dealers, and we invited them to contact us and to get in touch. There were a few queries that came to Wembley, and I think there were a few distributors added to their profile. So social media के through, digital marketing through, ये सब कुछ possible है जो आप एक रियल वर्ल्ड में कर पाते हैं. नेक्स्ट एक और चैनल है जिसकी हम लोग 4-5 चैनल्स को टच अपॉन करेंगे. आई विल मेक इट फास्टर बिकॉज आई थिंक आई एम रनिंग बिहाइंड टाइम. सो आई विल मेक इट फास्टर, बट आई विल ओनली टच अपॉन द चैनल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ बिजनेस ओनर और एज अ B2B मार्केटिंग एंथुसियास्ट. सो गूगल में बिजनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है हम लोगों के लिए. लिंक्डइन तो मैं अभी आऊँगा, लेकिन पहले मैं गूगल में बिजनेस दिखाना चाहता हूँ कि गूगल में बिजनेस के थ्रू आपकी जो लोकेशन है और सब कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. You might be seeing a number on your screen right now, 63,000. Can anyone guess what this number is? ये नंबर क्या है? Anyways, I'll just say what the number is all about. ये इतनी number of queries Google face करता है every second. All over the world, इतनी सारी 63,000 search queries are done every second. So Google के पास ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट डाइवर्ट करने के लिए 63,000 अपॉर्चुनिटीज होती हैं एवरी सेकेंड. बट आपकी अगर वेबसाइट ही नहीं है, आपका सोशल मीडिया पेजेस नहीं है, तो आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दोगे. सो दिस इज व्हाट गूगल हैज फॉर यू. गूगल में बिजनेस के ऊपर अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं, जो कि हम हमेशा सजेस्ट करते हैं फॉर B2B ब्रांड, देन यू आर बीइंग फाउंड अक्रॉस डिवाइसेस. आपकी SEO के अंदर हेल्प कर जाता है, आपको विजिबिलिटी में हेल्प कर जाता है कंपनी की. रिव्यूज ऐड कर सकता है बंदा वहां पर आके. The person can find out your factory address by seeing your Google My Business. So you can embed your Google My Business का map also over there. वहाँ पे डाल सकते हैं. You can share your categories over there. You can have an online presence over there. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बारबेक्यू नेशन है, उसका अगर एनालिसिस करें हम लोग, सो इट हैज मल्टीपल लोकेशंस विद इन दिल्ली NCR. सब पे उनका CTA है. CTA मतलब कॉल टू एक्शन. वेबसाइट क्लिक करने लायक है, राइट साइड पे अगर आप देखें, या फिर डायरेक्शंस. So you can either go to the website or you can go to that particular branch की directions ले सकते हैं आप. So CTA attributes भी हैं. अगर आप देखें डाइन इन लिखा हुआ है, डाइन इन, टेक अवे, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, these are all attributes. इसके थ्रू वो सर्च करता है, फिल्टर की तरह मान लीजिए इसको. Then there are phone number, there is address also. So ये सब चीज़ों को यूज करके गूगल में बिजनेस आपकी प्रोफाइल सेटअप करता है और आपको सर्चेबल बनाता है. ये सब मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे. यू कैन ऑल्सो हैव customer reviews, you can do ORM, you can respond to customer queries, you can have photos, you can have Q&A sessions, you can have FAQs over there. आप दिखा सकते हैं किस टाइम पे आप बंद हो जाते हैं. 6:30 आपकी शॉप क्लोज, तो आपने गूगल में बिजनेस के अंदर एंटर कर दिया कि भाई हम 10:30 शुरू हुए, 6:30 खत्म, तो दैट इज योर टाइम ऑफ ओपनिंग. गूगल में बिजनेस के अंदर काम करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं. जैसे आपका बिजनेस नेम जरूर होना चाहिए वहाँ पर, आवर्स ऑफ ऑपरेशन, फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए, फोटोज एंड पोस्ट होनी चाहिए. मैं एट्रीब्यूट्स भी डालता, लेकिन एट्रीब्यूट्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर ही माना जाता है, कैटेगरी अंदर ही माना जाता है. नाउ ट्विटर हैज 200 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, फेसबुक हैज 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, इंस्टाग्राम हैज 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स एंड लिंक्डइन हैज 660 मिलियन. आपको लग रहा होगा कि ट्विटर के अंदर तो सिर्फ 200 मिलियन है और फेसबुक तो बहुत आगे 2.7 बिलियन. लेकिन सबका अपना एक टेस्ट है, सबका अपना एक फ्लेवर है, सबका एक अपना पर्पस है लाइफ का. जैसे हम सबकी 5 उंगलियां होती हैं और 5 उंगलियों में से एक भी हटा दो तो अजीब सा है. सो उसी तरह से ये भी है कि इवन दो यस दे माइट वेरी इन द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स दे हैव, बट सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है. फेसबुक किसी एक सेगमेंट को केटर करता है, इंस्टाग्राम किसी और सेगमेंट को करता है, लिंक्डइन किसी और को, ट्विटर किसी और को. So first we'll talk about LinkedIn first of all, क्योंकि आप लोग business owners हैं and business B2B marketing में अंदर है. So there are some important stats. 4 out of 5 people on LinkedIn drive business decisions. आप 80% लोगों जिनको आप देखते हो, they are driving business decisions, they are decision makers. तो आप उनके बीच में बैठे हो. 55 million companies are there on LinkedIn to whom you can market, to whom you can talk to whom you can reach out.
60 million people are top business decision makers. They are either CXO लेवल के लोग हैं या फिर वो HOD टाइप के लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. 60 million people are there. इतना बड़ा यूनिवर्स है. 5 times companies with a complete active LinkedIn page sees 5 times more page views. More page views का मतलब क्या है? ज़्यादा branding, ज़्यादा possibility of converting somebody. So companies that have a complete active LinkedIn page, they are on the top. And next, 60% LinkedIn users are between 25 to 34 years of old age, which means that they are typically millennials. Millennials and Gen Z हैं, and अगले 5-10 साल के अंदर they'll be the decision makers. Even if they are not right now the decision makers, they'll be decision makers in the next 5 to 10 years. So patience वाली बात है. LinkedIn के अंदर रह के उस पे ऊपर मार्केट करना आपके लिए patience वाली बात है. It cannot be done in one go. This is a global stat of LinkedIn. इंडिया के अंदर तो देयर आर ऑलमोस्ट 71 मिलियन मेंबर्स. सबसे ज़्यादा यूएस कनाडा के अंदर होते हैं. Next, why do you need a LinkedIn page? For your virtual headquarters, to empower your employees to interact, contribute, expand your network, obviously, be a part of the global conversations that are happening, promote your company, and promote a specific business line or product feature that you want. So that is why you should be on LinkedIn. Then there are broad parameters through which you can understand why LinkedIn is so important. आप company culture दिखा सकते हैं. You can show thought leadership. You can talk about sectoral update. किसी ने किसी company को acquire किया, किसी ने किसी company को funding दी, जैसे हमारे Power to SME है. It has been funded and mentored by somebody like Nandan Nilekani. So somebody who's talking about Power to SME would be considered a thought leader in his own segment. या आप कोई event करना चाहते हैं, event registration का तरीका यहाँ पर होता है. सो लिंक्डइन के अंदर भी एक कंपनी पेज सेटअप की एक चेकलिस्ट मैंने बनाई है, जिसको मैं आई विल जस्ट रीड इट आउट बिकॉज आई थिंक ये रीडेबल नहीं होगा आप लोगों के लिए. सो पॉइंट ये है कि यू शुड ऑलवेज व्हेन यू आर सेटिंग अप योर कंपनी का लिंक्डइन पेज, यू शुड ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन माइंड. योर अबाउट सेक्शन शुड बी फिल्ड अप विद विजन, मिशन, वैल्यूज, पोजिशनिंग, प्रोडक्ट्स और फीचर्स. वो आपको डालने की जगह मिलती है, वेबसाइट का यूआरएल डालने की जगह मिलती है, कंपनी का हेडक्वार्टर्स, मतलब कि आपके अगर मान लीजिए बहुत से ब्रांच ऑफिस हैं बट एक मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो आप वो डालिए वहाँ पर. ऑफिस लोकेशंस कहाँ पे और हैं वो भी ऑप्शन देता है वो, कि अगर आपके पास अदर लोकेशन भी है. प्लस इंडस्ट्री और कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, कंपनी टाइप क्या है आपकी, कंपनी का साइज क्या है, और कुछ हैशटैग्स हैं जिससे आपकी कंपनी को रिलेट किया जा सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल somebody like Amarjit ji, who is into manufacturing of trailers and auto parts, आपके लिए एक hashtag will be automobile parts could be one hashtag. We'll have to search the search volume for that. Then you can join some relevant groups. हो सकता है automotive parts के ऊपर बहुत से LinkedIn groups हों जहाँ पे कि अमरजीत जी जा सकते हैं. So that becomes your company का page का checklist. Now there are some things that you must do when you have set up your LinkedIn. You should have a follow button to your website. You should have it as क्रॉस प्रमोशन कहते हैं इसको, कि आपकी लिंक्डइन का यूआरएल आपके कंपनी के प्रोशन में भी हो, कंपनी वेबसाइट में भी हो, आपके ब्लॉग्स में भी जाए, हर जगह जहाँ पर भी आप बात करते हैं एज ए कंपनी, वहाँ पे हर जगह पे लिंक्डइन का पेज जाना चाहिए. और एक्चुअली हर सोशल पेज वहाँ पे जाना चाहिए, नॉट जस्ट लिंक्डइन, बट लिंक्डइन जरूर जाना चाहिए. वी शुड पोस्ट कॉन्टेंट डेली. In some segments there it is not recommended to post daily, but in many places LinkedIn पे हर दिन पोस्ट आनी चाहिए. You should check your activity tab. वहाँ पे हो सकता है किसी ने आपको मेंशन किया हो, आपने मिस आउट कर दिया हो, तो आप वो चेकआउट करें. तो क्रॉस प्रमोट द पेज. ये सब चीजें जो है ये ऑन अ डेली बेसिस आपको करनी पड़ेंगी when you have a LinkedIn की presence. It requires someone professional who understands the platform inside out, who understands your company inside out, who understands the company's ethos inside out, to be able to manage your LinkedIn. So LinkedIn सेटअप करना अपनी कंपनी के लिए जस्ट वन टाइम जॉब. LinkedIn को ऑन अ डेली बेसिस चलाना एक अलग बिल्कुल जॉब बन जाता है. सो दिस इज सच चेकलिस्ट दैट यू कैन कीप इन माइंड. नेक्स्ट वी कम टू फेसबुक. फेसबुक के अंदर अगेन एज आई सेड देयर आर 1.3 बिलियन monthly active users in India. 66% users visit a local business page at least once a week. आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है, कि 2/3 people who are on LinkedIn on Facebook, they are visiting a local business page. चंडीगढ़ बेस्ड बंदा चंडीगढ़ या अमृतसर का पेज चेक कर रहा होगा, कोई दिल्ली में बैठा हुआ बंदा जो होगा वो शायद फरीदाबाद का कोई पेज चेकआउट कर रहा होगा किसी बिजनेस पेज को. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. इफ यू आर नॉट ऑन फेसबुक यू आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी. 34 मिनट्स बंदा जो है एवरेज टाइम स्पेंड करता है फेसबुक के अंदर. जस्ट इमेजिन आपने अगर अपनी दुकान
खड़ी कर रखी है एक मॉल के अंदर, और वहां पे मॉल के अंदर लोग आपके दुकान के बाहर आधा घंटा खड़े हो, क्या आप सेलिंग नहीं कर पाओगे? सिमिलरली आप ये सोचिए कि अगर फेसबुक पे बंदा आ रहा है और 34 मिनट स्पेंड कर रहा है, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेल. 30 million businesses own a Facebook page. Do you own a Facebook page? Are you amongst those 30 million? 80% people access Facebook on mobile devices. So as I said earlier कि आपकी वेबसाइट भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंस भी मोबाइल पे होनी चाहिए, और फेसबुक तो आपकी जो पेज होता है वो उस पर एनीवेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाता ही है. So 80% people are on mobile devices. They might be checking out your Facebook page while you are standing in front of them. But for that, you need to have a Facebook page. So why do we recommend people to go on Facebook company pages? Brand awareness, build a community, build long-lasting relationships, increase your reach, and show your expertise and educate the community. ये हमारी चेकलिस्ट है फॉर हैविंग अ बिजनेस पेज सेटअप. कंपनी लोगो, कंपनी वीडियो, आपका कवर इमेज होती है, डिस्प्ले इमेज होती है, यूआरएल होता है, अबाउट सेक्शन पूरा फुल होना चाहिए, कुछ कस्टम टैब का भी ऑप्शन होता है, फिर आप क्रॉस प्रमोशन जरूर करें. तो ये सब चीज़ें चेकलिस्ट का पार्ट है जो कि आपको रखनी चाहिए दिमाग में जब व्हेन यू सेट अप योर फेसबुक पेज. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम. Zubair, do we have some time? I think I've overshot my time already. Yes, still, you please carry on. Just try to just speed up a bit. Okay, thank you so much, Zubair. Thank you so much. Okay, so we talk about Instagram. I'll make it fast. Zubair is very kind-hearted. He's giving more time, but I know that I'm overshooting, so I'll make it faster. So Instagram के अंदर तो 1.07 billion active monthly users हैं. Fashion, spirituality, mental wellness, और automobiles, ये सब जो सेगमेंट है ये Instagram के अंदर दे आर बूमिंग लाइक एनीथिंग. खासतौर से Instagram के अंदर आपने देखा होगा कि अब Instagram रील्स आ चुका है. So that has made trends go viral. जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा छोड़ नहीं जाना रे. What is that? That is somebody who sang this song on Instagram. He was picked up, Sahadev was picked up by Badsha, and it has been converted into a big song, right? So that is a guy who rose up from Instagram and from the likes of TikTok. So Instagram की importance अपनी कम नहीं है, but कुछ segments के अंदर बहुत ज़्यादा importance है reels के चलते. 70% people on Instagram are below 35 years of age. If you are selling a product that is appealing to people who are less than 35 years of age, Instagram is one page that you have to be on. Globally, this is one platform that is skewed towards females. 51% global Instagram users are females. So which means that if you are again selling something that is appealing to women and women related products, और या फिर home cooked products हैं, या फिर आपका fashion products हैं, आप अगर उस पे डील करते हैं, so Instagram is one place you need to be on. Jewelry is one place that you must have on Instagram. 30 minutes people spend on Instagram. Facebook में कितना था? 34 minutes था. यहाँ पे 30 minutes है. Again, if somebody is standing in front of your storefront for 30 minutes, won't you sell to that person? If not, then you need to understand कि आप इतने confident क्यों नहीं अपने brand के बारे में. Next, 80% Instagram users reach to Instagram for products and services. 80%. 4/5 का यहाँ से decision बनता है. Why do you need to be present on Instagram? Opportunity to gather eyeballs, obviously. Build your community. Tag, shop and sell products. This is one feature of Instagram. Shopping is one feature. इस पे हम लोगों ने blog भी लिखा हुआ है. I can share that blog का link later on. Instagram shopping एक इतना बड़ा feature है जिसके थ्रू बहुत सेलिंग होती है. खासतौर से अगर आप ज्वेलरी मेकर्स हैं तो आपकी Instagram के अंदर बहुत सेलिंग होती है, because you can tag your products, you can shop, you can sell, you can do anything you want. You can even put on your price tag over there कि मेरा ये ज्वेलरी का सेट जो है वो इतने लाख रुपए का. हो सकता है कि आप ये बोल रहे हैं कि मेरी सनग्लासेस जो मैं आपके साथ सेल कर रहा हूँ उसका ये पैसा है. तो आपको Instagram पूरा वो अपॉर्चुनिटी देता है, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव एन Instagram बिजनेस अकाउंट. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो बिकम एन इन्फ्लुएंसर ऑन Instagram. देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, लाइक जैसे आप लोग देखिए तो कुशा कपिला, अगर आपने नाम सुना हो, और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि Instagram पे अपने लाइवलीहुड चला रहे हैं. सो इन्फ्लुएंसर बनने का भी मौका यहाँ पर होता है. एंड बिकॉज आप लोग बिजनेस ओनर्स हैं या फिर बिजनेसेस के अंदर की डिसीजन मेकर्स हैं, सो योर व्यू पॉइंट्स मैटर लॉट, एंड व्यू पॉइंट पे ही सारा बिजनेस का गेम होता है फॉर इन्फ्लुएंसर्स, राइट. सो यू कैन ऑल्सो रिसर्च कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आप वो भी निकाल सकते हैं.
You can show your expertise as an influencer, educate your community. आप ये भी कर सकते हैं Instagram के थ्रू. Instagram business page बनाने की checklist एक यहाँ पे है shared. Again, you have to switch to business profile. By default आपकी personal profile भी बनाता है Instagram. You have to switch to either the creator profile or your business profile. If you're a business owner, you should go for business profile. Then you have to fill up all the categories. You can have a link inside your profile जहाँ पे कि आप उनको direct कर सकते हैं. Instagram does not allow photos to take you to the website. ये एक उसका फीचर होता है. Even in the description part, you can't go to the website. So बंदा प्रोफाइल पे आता है, प्रोफाइल पे आने के बाद वहाँ पे क्लिक करता है, फिर वेबसाइट पे जाता है. So you need to add a website link in the profile section. Your about section should be complete, accurate and consistent with all the details mentioned in the website. बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों ने पता चला वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के बाद 4 अपने चैनल बना दिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और चारों पे अलग अलग अबाउट डाल रखा है. कोई भी यूजर आया वो कंफ्यूज हो गया, बोलता है फेसबुक पे आया यार तुम ये बोलते हो, तुम ये करते हो, इंस्टाग्राम पे गया तुम यार अब ये तुम बता दो तुम कुछ और करते हो, लिंक्डइन में गया मैं कुछ और देख रहा हूँ तुम्हारे बारे में, और वेबसाइट तुम्हारी किस और बारे में. तो बंदा कंफ्यूज होकर भाग गया कि भाई पता नहीं क्या करते हैं. सो पॉइंट ये है कि जो आपने वेबसाइट के अंदर डाला है, जो आपने वेबसाइट के अंदर अपना अबाउट सेक्शन में डाला है, उसी का एक पार्ट आपका इंस्टाग्राम का अबाउट में जाएगा, उसी का वही पार्ट जो आपका फेसबुक के अंदर जाएगा, ट्विटर के अंदर जाएगा, लिंक्डइन के अंदर जाएगा. जो प्लेटफॉर्म बनाओगे, लेट द इन्फॉर्मेशन बी कंसिस्टेंट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट. क्लिकेबल बटन होना जरूरी है. इफ यू वांट टू आस्क पीपल टू कॉन्टैक्ट यू और book a session for mental wellness, or you want somebody to shop for jewelry, so you should have a clickable action button. You should have 10 hashtags in every post. ये तब है जब आपने सेटअप कर लिया और आप मेंटेन करना शुरू करें. Then you can have offers on your Instagram page. You can cross promote the page on company website, blogs, brochures. Again, cross promotion तो हर channel को होना चाहिए. And then if you have been handling the Instagram channel for some while, and if you have some comments, you must respond to them within 24 hours. 24 hours में ज़्यादा बता रहा हूँ मैं. Typically it should be answered within 1 hour. आप या तो उसको DM करें, किसी बंदे ने आपके पॉइंट पे कमेंट किया है उसको लाइक करके उसको कमेंट करें, या फिर उसको DM करें, लेकिन करें तो विदिन 24 आवर्स तो मैक्सिमम करें. 24 आवर्स के बाद का मतलब ये है कि वो बंदा शायद आपके पेज पे फिर से नहीं आने वाला, बिकॉज ही थिंक्स दैट you are not running a very very active channel. नेक्स्ट वी कम टू ट्विटर. ट्विटर भी अगेन अभी गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में है, लेकिन ट्विटर अपने आप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल है, एंड उसके भी रीजंस हैं जो अभी आपको पता चलेंगे. इट इज़ अ 353 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स. दैट 28% सबसे बड़ा सेगमेंट जो हर एक प्लेटफॉर्म का होता है, उनमें से ट्विटर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेगमेंट है, दैट इज ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 50 years of age. इसका मतलब ये है कि जब आपको एक 40 ईयर के परचेज मैनेजर को, 45 ईयर्स के परचेज मैनेजर को, या किसी एक स्टार्टिंग ऑफ आईएएस के साथ आपका कोई बातचीत होने वाली है कल को, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल एलीट है जिनसे आप बात करने वाले हो, तो वो बंदा ट्विटर प्रेजेंट है. सो यू हैव टू पिवट योर बिजनेस सच अ वे दैट यू आर टॉकिंग टू बिजनेस ओनर्स थ्रू ट्विटर. अगर आपका सेलिंग सेगमेंट वहां पर है. 70% global Twitter users are male. This is male skewed platform till now. हमारा Instagram was female skewed, very marginally, but ये heavily male skewed platform है. 1 minute, only 1 minute people spend on Twitter, so attention span is very less. And 82% B2B marketers use Twitter for marketing. So almost every B2B marketer is using Twitter for marketing. So आपके दो प्लेटफॉर्म पक्के हो गए. अगर आप डिजिटल प्रेजेंस चाहते हो तो LinkedIn एंड ट्विटर तो आपके पक्के हो गए. Now depends on who are the people you are trying to target. अगर मैच्योर लेवल के तो ट्विटर और लिंक्डइन दोनों होना चाहिए. अगर टारगेट किसी को करना है जो कि 35 ईयर्स से कम के, तो यू कैन skip Twitter for the time being and go only for LinkedIn. Next, why do you have to make these Twitter company pages? Twitter company page नहीं होता actually. Twitter handle होते हैं, but we are saying company page so that it's easier for you to understand. So why do you want to have that presence? So that you can have genuine connection. You can drive conversation about a topic. नीरज चोपड़ा के बारे में बड़े conversation हुए, है ना, कि नीरज चोपड़ा जब गोल्ड जीत के आया और नीरज चोपड़ा की स्ट्रगल्स देखी गई, तो उस पर कॉन्वर्सेशन शुरू हो गए. इससे पहले आप पिछले साल अगर आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन हुए थे कि भाई उसकी डेथ कैसे हो गई और उसको जस्टिस कब मिलेगा. तो ये सब चीज़ें हैशटैग बन के वहाँ पे ट्रेंड कर रही थी. सो यू आर एबल टू ड्राइव कॉन्वर्सेशंस or talk about Olympics, or talk about Sushant Singh Rajput, or talk about politics on Twitter. This platform is dominated by intellectual elite of the company. So if you are a company that is also
catering to if you're, for example, a market research company that wants to talk to consultancy firms, it is quite possible that जिस consultancy firm से आप बात करना चाहते हो, उनकी top management will be very, very active on Twitter. So you might want to check them out and talk to them about things that they care about. Help in achieving better search engine ranking, ये हमेशा help करता है. And anybody can go viral on Twitter. Anybody. आपको हल्का सा effort डालना होता है, sustained effort डालना होता है, you can go viral on Twitter. Twitter business page checklist, company logo as display pic. It also gives you a place to upload your cover pic. You can pin your best tweet at the top of the profile so that people can see that. Again, about section, the same thing. Complete, accurate, and consistent with the website details. You have to be accurate with your about section everywhere, on every platform. You should try to have 3 hashtags in every tweet. Now, hashtags का जो significance है वो Instagram और Twitter के लिए बहुत important है. हैशटैग को आप ये मानिए कि हैशटैग इज जस्ट लाइक एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जिसके अंदर छोटे छोटे रूम्स बना रखे हैं. सो हैशटैग इज दैट वन स्मॉल रूम जहाँ पे कि एक बात के बारे में कन्वर्सेशन हो रहा है. कोई बंदा बात कर रहा है कि नीरज चोपड़ा इज वंडरफुल, ही शुड बी एबल टू विन द नेक्स्ट गोल्ड आल्सो. ये एक रूम बन गया. एक रूम बन गया कि इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, उसके अंदर इंडिया की कैसी हालत हो रही है, वो एक रूम बन गया. सो ऑल दिस हैशटैग्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन डिफरेंट रूम्स. So every tweet that you send out as a company, they should have at least 3 rooms ka catering wala content. And these 3 hashtags need to be researched, not just put out like that. They need to have some volume to it. You can handle other handles as well. बहुत बार जो होती है बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको टैगिंग नहीं करने देती, बट ट्विटर पे ये पॉसिबल होता है. You can tag other handles. You can also cross promote your Twitter handle across all platforms. As I said earlier, जहाँ पर भी आप प्रेजेंट हैं, आप अगर कहीं पर भी प्रेजेंट है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और एनी अदर प्लेस, it should be there on your company website, it should be there on your brochure, on your any other portfolio or your business card also. Again, respond to comments within 24 hours. I would say earlier than that. एक बार आपको इस ग्रिड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जो आपको दिख रही होगी, इसको एक बार आपको देखना रहेगा. This is again not holistic, it is indicative. But what I've done is that I have divided all the sectors and I have divided all the social media platforms or digital marketing platforms. And किस platform पे आपको होना ज़रूरी है. So चाहे आप automotive के हों, चाहे आप fashion accessories बेच रहे हों, चाहे आप pharmaceuticals पे हों, चाहे आप energy हो, solar energy और wind energy, whatever company you are having, website होना तो mandatory है. Website के बिना तो काम ही नहीं चलता. बहुत से लोगों को ये perception है कि आप Facebook बना लो, website मत बनाओ. ऐसा नहीं होता. Website is like your home. You have to make your probably you should take it as a corporate headquarters, not a home. So corporate headquarters के बिना आपके branch office तो नहीं बनेंगे ना. So website तो होना mandatory है. Website में तो आपको time भी लगाना चाहिए, आपको अच्छी बनानी भी चाहिए, and that will be your thing important. GMB is almost getting very important because of SEO part of it. SEO में help करता है, आपके website को searchability में help करता है, support करता है website को, इसलिए GMB बहुत important है. I would suggest for every company that you have, there should be GMB. LinkedIn also, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जिनसे बात करनी है वो LinkedIn पे ही बैठे हुए. Instagram, Facebook, Twitter, इन सब पे होना भी इंपॉर्टेंट है. मैंने उन सब जगह पे टिक मार्क किया जहाँ पे कि होना चाहिए. ईमेल मार्केटिंग भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी सारे कैविएट्स हैं जिसको हम लोग बहुत डिटेल में भी जान नहीं पाएंगे, लेकिन ईमेल मार्केटिंग B2B सेगमेंट के अंदर बहुत कारगर है, बहुत सक्सेसफुल है. व्हाट्सएप मार्केटिंग भी लोग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी लोग करते हैं और वो काफ़ी अच्छी जाती है. यूट्यूब का जो है वो ये कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर ऑटोमोबाइल कोई बाय सेल न्यू और यूज कार्स कर रहा है तो उसको कार्स को दिखाने के लिए चाहिए होता है, यूट्यूब के वीडियो चाहिए होते हैं. फैशन एक्सेसरीज, इनको यूट्यूब जरूर चाहिए होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो यूट्यूब के अंदर बहुत धमाकेदार कैंपेन करेगा, फिर लॉन्च करेगा. सो यूट्यूब का भी इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एग्जॉस्टिव, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन हाँ इंडिकेटिव है दैट यू शुड हैव प्रेजेंस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ दीज सेक्टर्स. Now there are some free tools and resources that you can access when you are going to set up this digital properties of yours. Again, ये सिर्फ tools and resources हैं. They are not the end of it. They are just the starting part of it. इनको आप एक ये मान लीजिए कि कोई ना कोई चीज़ करने के लिए कुछ तो शुरू करना पड़ता है ना, तो आपको फ्री टूल्स एंड रिसोर्स में आपको बता रहा हूँ. लेकिन आप ये सोचें कि इसके थ्रू आपकी पूरी ब्रांड सेटअप हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मुश्किल है. अनलेस यू लर्न how to do these. Canva is one. Canva के अंदर आप अपना ग्राफिक डिजाइन बना सकते हैं,
सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना सकते हैं, डाल सकते हैं उनको। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग बहुत लोगों को सजेस्ट करते हैं एंड दे ऑल्सो डू कैनवा, बट 2 से 3 महीने के बाद दे आर लाइक टायर्ड कि यार हम लोग क्या करें, कैनवा कितना कर लिया हमने, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो सस्टेन तरह से जो है कैनवा या कुछ नहीं चलता। दरअसल एक प्रोफेशनल सर्विस ही चाहिए होती है इन चीज़ों को फॉर अ सस्टेन बेसिस हैंडल करने के लिए। बट कैनवा इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ग्रामरली, व्हेन यू आर राइटिंग ब्लॉग्स फॉर वेबसाइट, ग्रामरली हेल्प्स यू करेक्ट दोज ब्लॉग्स। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, पंक्चुएशन एरर हुआ, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ, सो आई एम अ ग्रामर नाजी, सो मुझे फर्क पड़ता है कि कोई ग्रामर मेरे सामने क्या लिख के दे रहे हैं। सो ग्रामरली हेल्प्स यू इन दैट। सेंडग्रिड इज नथिंग बट ईमेल डिलीवरी सर्विसेज। इसके अलावा एक मेलचिम्प भी होता है जो कि आपको हेल्प करता है फ्री में। ये कुछ दे गिव यू क्वांटम ऑफ ईमेल्स टू बी सेंट आउट, 200 टू 250 ईमेल्स आप फ्री में सेंड कर सकते हो। फोन नंबर क्रॉस किया फिर आपको यू हैव टू पे अपग्रेड योर थिंग। सो उतना रहता है आपके पास। बिटली इज अ यू आर अ शॉर्टर। Evernote is a way through which you can collaborate with your teammates, remote work जो कर रहे हैं, and you can give them assignments and Asana भी एक ऐप है, Evernote भी एक ऐप है। Evernote आपको थोड़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी देती है। Uber suggest when you are planning to do some blogging और आपको लगता है कि यार मैं आइडिया कहाँ से निकालूँ, कौन सी कीवर्ड पे बात करूँ। टिपिकली एजेंसीज आपस में करती हैं, बट बहुत बहुत कंटेंट राइटर्स भी करते हैं। तो Uber suggest is one place where you can find out which keyword and what idea you should write about. Google Slides, this is a Google slide that I'm showing you right now. इसके अंदर आप आराम से without putting extra burden on the RAM of your company, of your computer, you can display websites. Google Sheets, इसके थ्रू भी आप काफी चीजों को प्लान आउट कर सकते हैं। Again, there's one thing that any business owner or people of your domain cannot leave out, that is networking. नेटवर्किंग आपको वहां पहुंचाता है जहां पे आप सोच नहीं सकते। आई एम अ फर्म बिलीवर इन नेटवर्किंग एंड आई थिंक नेटवर्किंग और एक हैंडशेक, एक नाइस कॉन्वर्सेशन विद अ बिजनेस ओनर or a nice conversation with somebody who understands your pain points or understands that what value you bring to the table can get you connected to your dream company. So आप अगर B2B के अंदर काम कर रहे हैं, networking is something that you cannot ignore. It is as essential as a website. सो चाहे आपके आसपास कोई बिजनेस एसोसिएशन हो, चाहे पॉलिसी थिंक टैंक्स हो, चाहे पावर टू एसएमई जैसे एक प्लेटफॉर्म हो, आपको जरूर नेटवर्क करना चाहिए। यू शुड बिकम यू शुड बिकम मेंबर्स ऑफ दीज प्लेसेस एंड ऑलवेज एक्सेस और ऑलवेज अटेंड देयर इवेंट्स सो दैट यू आर इन टच विद व्हाट्स हैपनिंग इन इंडस्ट्री। आपको पता चल रहा है, आप अपग्रेडेड रहें और आपके अंदर मोटिवेशन बना देता है। देयर आर अ फ्यू केस स्टडीज आई वांट टू शो। आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स फॉर दिस। एक हम लोगों ने इवेंट मार्केटिंग किया था फॉर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, जिसके अंदर लॉरियट्स एंड लीडर्स एक उनका इवेंट होता है जहाँ पे कि हिज होलीनेस दलाई लामा की प्रोफाइल के लोग आते हैं, नॉर्वे के प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन देवर डम फाउंडेड बिकॉज दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अब ये जो इवेंट हम एक ऑडिटोरियम हायर करके करते थे, स्वीडन जाके करते थे, अब कहाँ करेंगे, रिमोटली करेंगे, कितने लोग आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े लोग आ जाए और देखने वाला कोई ना हो। So we help them get registrations. उन्होंने अपने इवेंट को इवेंट ब्राइट पे रजिस्टर कर रखा था, तो दे वांटेड टू हैव रजिस्ट्रेशंस एंड दे वांटेड टू हैव पीपल, दे वांटेड टू हैव कमेंट्स बीइंग मॉडरेटेड। अगर यूट्यूब लाइव चल रहा है, कैलाश सत्यार्थी जो नोबल लॉरियट हैं कुछ बोल रहे हैं और पीछे से कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको भी मॉडरेट करने वाला भी चाहिए। उस इवेंट के लिए बस बनाने वाला भी बंदा चाहिए। तो हमने ये 16 डेज की कैंपेन किया था जिसके अंदर ब्रांडिंग किया था, क्रिएटर सपोर्ट दिया था और प्री इवेंट बस क्रिएशन किया था, इवेंट कवरेज किया था। And ultimately they ended up having a room full of people who were listening to them on YouTube live and Instagram live. तो जहाँ जहाँ पर थे उनको इवेंट रजिस्ट्रेशन मिला, उनको लाइव इवेंट के दौरान भी बहुत से कमेंट्स आए गए और दे कुड सी दैट। सो दिस वाज वन केस स्टडी। हमने रिमोटली बैठे बैठे एक इंटरनेशनल इवेंट को कंडक्ट करवाया और उसको सक्सेसफुल करवाया। आप डिजिटल मार्केटिंग थ्रू ये सब कुछ कर सकते हैं। एक डर्मावेयर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसका हमने SEO किया था। अगेन एज आई सेड दैट देयर आर 2 मिलियन वेबसाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वेबसाइट एक 2 मिलियन प्लस 1 हो जाए तब भी पता चलता है। लेकिन SEO जब आप कराते हैं, विच मीन्स दैट जब गूगल पहचानता है कि अच्छा एक और वेबसाइट बनी है और उस वेबसाइट को मैंने ट्रैफिक तब लाऊंगा जब मैं ये 4 कीवर्ड देख लूंगा, तो वो SEO कहलाता है। सो डर्मावेयर एक शेपवेयर ब्रांड है जिसका हम लोगों ने SEO किया था, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, ब्लॉग्स के ऊपर किया था एंड अल्टीमेटली दे हैड मोर ट्रैफिक ऑन रिलेवेंट कीवर्ड्स। जब गूगल से जब कोई बंदा सर्च करके वेबसाइट पे आएगा ना आपकी, एज कम्पेयर टू कोई बंदा ऐसी ऐसी पहुंचे वेबसाइट पे आपके,
फर्क होता है, इंटेंट का फर्क होता है। आप जैसे अब ये समझिए कि जो बंदा उस मोड में आया है, थिंकिंग से आया है, बंदा बैठ के टाइप कर रहा है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड विच इज द शेप वेयर इन इंडिया, बेस्ट शेप वेयर ब्रांड इन इंडिया, तो बंदा वो कुछ सीखने के मूड में आ रहा है, तो ही विल लैंड अप एंड ही विल डू सम गुड एक्शन। तो वो एसईओ पकड़ लेता है कि हाँ ये बंदे की इंटेंट अच्छी है, इस बंदे को वेबसाइट पे लेके आओ। तो इंक्रीज इन गूगल एसईआरपी फॉर रिलेवेंट कीवर्ड्स रिजल्ट होता है, ऑर्गेनिक वेबसाइट बढ़ता है, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है, पेज व्यूज बढ़ते हैं, मंथली सेल्स बढ़ती है। अल्टीमेटली इट इज लाइक अ फनल। आपकी वेबसाइट पे अगर कोई बंदा आया है तो इन मोस्ट केसेस ही विल एंड अप कन्वर्टिंग सम वे और द अदर, either reading your blog, either downloading a brochure, either making a sales or something. हमने फिर एक तापमी स्कूल ऑफ बिजनेस मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग का काम किया था। उसके अंदर ब्रांडिंग भी की थी और उनके लिए लीड जनरेशन भी किया था, विच कम्स अंडर द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो हमने इनके लिए 6 मंथ की कैंपेन किया था, 416 इनके लीड निकाली थी। एंड टिल नाउ 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, एंड टिल देन दे हैड ओनली हैड क्लासरूम ऑफ 60 में उनका जो फिलअप मैक्सिमम फिलअप हुआ था 4 साल के अंदर, वो था 24-25 बच्चे एवरी ईयर। बट जब हम लोगों ने मार्केटिंग किया, लीड जनरेशन किया और सब कुछ इनकी ब्रांडिंग भी किया, प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी किया, 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली किया, टीम को लगाए रखा, 416 लीड्स आई। और उनका पहली बार जो पूरा कॉलेज था, 60 स्टूडेंट्स जो उनके क्लासरूम के थे वो पूरे फिल थे। सो दिस वाज वन अचीवमेंट दैट वी हैड। उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड था, वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाया था हमने, एसईओ किया था, ब्रांडिंग और सोशल चैनल किया था, क्वेरी हैंडलिंग की थी, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग वॉग, ईमेलर, सब कुछ किया था उसके अंदर। तब जाके पूरा एफर्ट बन के आया था। दैनिक जागरण संस्कारशाला, ये हमने एक इवेंट किया था, 2.5 months कैंपेन, राइट फ्रॉम टीचर्स डे टू चिल्ड्रंस डे कैंपेन था, जिसके अंदर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर दैनिक जागरण की टीम जाती थी, और भोपाल के अंदर और आपके इंदौर के अंदर स्कूल्स का असेंबली टाइम जो होता है उसको टेक ओवर करती थी। उनके साथ वो 9 to 10 पॉजिटिव एथिक्स एंड पॉजिटिव वैल्यूज को प्रोपगेट करते थे, एंड दे हैड टू गेट अ बैकअप फ्रॉम द बैक एंड, जो डिजिटल मार्केटिंग का बैक एंड था। सो वी गिव देम द बैक एंड, वी डिजाइन द वेबसाइट फॉर देम इन सच अ वे दैट इट वाज रिस्पॉन्सिव, इंटरैक्टिव वेबसाइट थी, डायनामिक वेबसाइट थी, उनका एसईओ किया गया, उनकी ब्रांडिंग की गई सोशल मीडिया चैनल पे, उनकी हाइप बनाई गई, फिर उनकी क्वेरीज बहुत सारे आते थे, एंड फाइनली उनके मीडिया बाइंग भी की थोड़ी बहुत, और दे हैड अ टोटल रीच ऑफ 82 lakhs, 80 लाख लोग पहुंचे। और 60 डेज के अंदर दे हैड अमेजिंग एंगेजमेंट। बहुत ही अच्छा ये केस स्टडी था हमारा। And then we had done one for Taiwan Expo also. Taiwan Expo was looking to, Taiwan Expo is Taitra is like the FICCI of Taiwan. वो semi government organization है Taitra, and they would bring a host of 300 companies from Taiwan to a foreign company, a foreign country like India, and they would they would hire a event place like a Pragati Maidan, and they would take all the stalls over there and set that up, and there would be a buyer seller meet over there. So they were doing it for the first time in India. They had been doing in Philippines or Singapore करते आए थे, but they were coming to India for the first time, and we were asked to do the digital marketing for them, and it was a business matchmaking that was done. Branding हुई थी इनका 42 days का campaign था, जिसके अंदर 20 लाख की रीच थी, और इनके वीडियोस बहुत सारे बने थे। इन्होंने मोबाइल ऐप ही लॉन्च की थी, जिसका बहुत वहाँ पर क्रेज हुआ था। तो इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आए, और बहुत सारी इनकी अच्छी मार्केटिंग हुई थी, जिसके अंदर दे केम बैक अगेन नेक्स्ट ईयर, वी अगेन डिड मार्केटिंग फॉर देम नेक्स्ट ईयर, बट 2020 के अंदर दे कुड नॉट डू इट। सो दिस वाज वन सक्सेसफुल कैंपेन, अगेन इवेंट मार्केटिंग डन रिमोटली ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। सो द पॉइंट इज दैट डिजिटल मार्केटिंग जो है, या मार्केटिंग एसेंशियल्स जिसको हम कहेंगे, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आजकल। और इसके अंदर आप जो भी कुछ अपनी ऑफलाइन दुनिया के अंदर सोचते हैं कि आपको चाहिए, वो सब कुछ ऑनलाइन पे करने लायक है। चाहे डीलर चाहिए आपको, चाहे आपको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, चाहे आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए, चाहे आपको ऑडियंस चाहिए जो आपकी चीज़ों पे क्लैक करे, चाहे आप चाहते हो कि भाई मेरे को एज अ नॉलेज एक्सपर्ट दिखाया जाए, तो वो भी आपके लिए करना आसान है, ओनली बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड मेनी ऑफ इट्स वेज। So this is my presentation. I like to stop over here. If there are some questions, I'll be happy to take. Thank you, Ambuj. Thank you for this detailed, exhaustive, and very insightful presentation. I hope every member of our participants must have got very good knowledge of how, if they are already into this space,
how to chart out their future journey, and if they are missing out currently, how to plan to start into the digital space. I hope every slide that you shared must have enriched their wisdom. And I have received a few quite a good number of appreciation messages from the audience. Besides, I have one question from one of our participants who is interested in knowing about what channels are suitable and suggest like recommended for the promotion of software products. Right. So that's a very good question. If I could also know your name, PS, I don't understand the name. But anyways, so when we talk about B2B software products, typically आपका तीन चार चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए. उसके अंदर ये है कि B2B सॉफ्टवेयर जो भी कोई बंदा बाय करता है, वेदर इट्स CRM, आपका CRM सिस्टम है, ERP सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो आप बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमेशा इट्स अ न्यू कैटेगरी फॉर पीपल. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स न्यू कैटेगरी. उसके अंदर कैटेगरी अवेयरनेस बढ़ाने वाले ब्लॉग्स, और आपका आपका सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर बाकी बचे सॉफ्टवेयर से डिफरेंट कैसे, उसके तरह के ब्लॉग्स, उसकी तरह की पोस्ट्स. सो द gamut of activities will revolve around your website, your blogs, your LinkedIn channel. It could also have, in some cases, it could also mean that you should have a good presence on Instagram and Facebook both. Twitter के अंदर you should have a presence. YouTube के अंदर you must have a presence. You must have a explainer video if you have a new concept, if you have a USP around your B2B software product. I would say that have an explainer video as well. That should be on your home page as well in one of the sliders. When somebody goes down from your top of the home page to down part, that should be also part of it. Mr. Amarji, Hanji. Mr. Aditya, most of our customers are, as you rightly said, are above 40 of age, and they are they are just not interested in Instagram, FB, etc. But do they respond to email campaigns? Okay. They do respond to email campaign. Can you share some insights for good email campaigns? Your quick tips about email campaigns. Sure. So Amarjeet ji, very good question. In fact, that's a very good observation. जब आप email campaign जब आपने subscribed या फिर opt-in customer साथ करते हैं, एक तो होता है भाई आपने database buy कर लिया, which I never recommend. लेकिन एक होता है कि आपने सालों साल marketing किया, उसकी वजह से आपके पास एक email का set आ गया. जब आप उनको email भेजते हैं तो ज़्यादा response rate होता है. आप CTR अगर देखेंगे, click through rate जो होता है और click to open rate जो होता है, वो अच्छा होता है. Insights की अगर आप बात करें email marketing campaigns, तो ये कि email marketing campaign के अंदर ज़्यादातर जो मैंने देखा है, they only talk about one or two things within the body of that email. One or two things. वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते. अगर आपको कोई वीडियो दिखाना है उनको अपने ईमेल के थ्रू, तो आप YouTube का लिंक डालते हैं. अगर आप चाहते हैं कोई वो आपका ब्लॉग पढ़े, या आपने कोई कंपनी का कोई डीलरशिप का कोई कहीं पे लोकेशन में ओपन किया है, तो आप सिर्फ 5-6 फोटोज डालें. सो देयर शुड बी ओनली वन और टू टॉपिक्स दैट यू टॉकिंग अबाउट विद इन दैट ईमेल, एंड उसका जो लुक एंड फील है और वो सब है, वो सब कुछ ब्रांडिंग गाइडलाइंस के अंदर आता है. We can have an off this meeting conversation. I can explain it better to you. I have a few email marketing campaigns, a case study also, and I think I can explain that to you better offline. तो Ambuj, I would suggest ये जो आपने contact details का slide अभी run कर रखा है, I would suggest if you can also share your contact details with our audience on chat so that they can save it, keep it handy. Sure. That's a good point. Because I'm like literally sure that our audience today will take a little bit of time to imbibe the entire knowledge. They will have some internal discussions to chart out their journey on digital, and then you will be getting quite good number of like queries and clarification calls in coming days. So I would suggest if you could share your contact details on chat here also. I'll just do that. I'm going to share 4 things: my name, my phone number, email address, as well as the LinkedIn. Mr. Devang, you will all the participants who have registered for this masterclass will be getting the recording of this session. No worries with that.
So, Ambuj, it was really very insightful session, though we surpassed the time limit by a good 30 minutes, but it was really very interactive and not many people dropped out. So, with these words, I thank Ambuj you again and all the participants for joining in. And we have also circulated a link to our daily newsletter by the name SME Faber for all the relevant news pertaining to MSME sector, be it policy-wise, technology-wise, tie-ups, IPOs coming, everything you want to know about MSME, you get it under one roof, which is SME Faber. And thanks again to you, Ambuj, and to our participant. Hope to see you next week with a new topic. And till then, have a good day. Thank you so much. Thank you so much.